علی امین گنڈاپور اپنے تخت کے اندر کسی اور کو حصہ دار بنانے میں مجبور ہو جائیں گے۔ یہ جو خط خط ہیں یہ چالیں ہیں اور ان چالوں کو ہم بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں ٹرمپ انتظامیہ سے کسی خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب نئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ سچویشن یہاں پر آ کے اب ہو جاتی ہے ٹرکی۔ علی امین گنڈاپور عمران خان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بھی موسم فخر میں خوش آمدید لینا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور کی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کل ہونے والی ملاقات کی کچھ تفصیل سامنے آئی ہے اور یہ تفصیل اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ عمران خان اور علی امین گنڈاپور کے درمیان بہت کچھ ہے جو ابھی ٹھیک نہیں ہے اور بہت کچھ ایسا ہے جو کہ مزید خراب ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو تفصیل سامنے آئی ہے، اندرونی کہانی جو ملاقات کی سامنے آ رہی ہے، اس کے مطابق عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو سخت مشکل میں ڈال دیا ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب کو ہدایت کی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے ایک رہنما کو صوبائی کابینہ میں شامل کریں۔ نہ صرف شامل کریں بلکہ اس کو انتظامی اختیارات بھی دیں۔ اور آپ بتائیں کہ جناب یہ کس قدر مشکل صورتحال ہوگی علی امین گنڈاپور کے لیے کہ وہ اپنے ناپسندیدہ ترین سیاسی رہنما کے پاس خود جائے، چل کے اس کو جا کر جناب اپنی کابینہ میں شامل کرے اور اپنے اختیارات پلیٹ میں رکھ کر اس کے سامنے رکھ دے۔ تو کیا یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ یقینی طور پر ہے، اور یہی اس ساری کہانی کا سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جناب علی امین گنڈاپور اس ساری صورتحال پر کیوں مجبور ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ کون سا رہنما ہے جس کو عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل المعروف علامہ اڈیالوی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں یعنی کابینہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا علی امین گنڈاپور اپنے تخت کے اندر کسی اور کو حصہ دار بنانے میں مجبور ہو جائیں گے؟ اور کیا علی امین گنڈاپور عمران خان کی اس ہدایت پر عمل درآمد کریں گے؟ کیا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ٹوٹنے والی ہے؟ امپورٹنٹ صورتحال ہے اور اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جو عمران خان کے لکھے ہوئے خط تھے وہ آرمی چیف تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کسی طرح کا یا خاص طور پر عمران خان کے لیے کوئی حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب جو آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ وہ کسی انڈین جرنلسٹ کے ذریعے عمران خان اور پاکستان کے حوالے سے کوئی سوال کو پٹ کرا دے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی کیونکہ نہ تو کوئی سوال ہوا اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عمران خان کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی ذکر کیا گیا۔ البتہ یہ جو دورہ ہے نریندر مودی کا، مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس دورے کے اثرات پاکستان کے اوپر نمودار ہوں گے اور یہ اثرات جو ہیں وہ اچھے اثرات نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب اسی ملاقات کے دوران یہ جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی، اس میں انڈیا کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اس نے F-35 طیارے دینے کا بھی اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالر کا اسلحہ انڈیا کو بیچنے کی بات بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ممبئی اٹیکس میں ملوث ملزم کو بھی جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کرنے کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خطے کے اندر بڑھتا ہوا ٹیررزم ہے اس کے اوپر بھی اظہار خیال کرتے ہوئے اس کو جناب انڈیا کی سپورٹ کے اندر ٹلٹ کیا، اور بنگلہ دیش میں ہونے والی صورتحال میں بھی انڈین پرائم منسٹر کے رول کو جو ہے وہ ابھارا۔ تو اس بات کی طرف واضح طور پر اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے یہ جو نئی امریکی انتظامیہ ہے وہ کچھ زیادہ اچھے تاثرات نہیں رکھتے، اور اس کا ایک ثبوت ہمارے سامنے اس وقت بھی سامنے آتا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی کے دورے کے دوران جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے لیے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کی تقرری کا حکم نامہ جاری کرتے ہیں، اور اس حکم نامے کے مطابق جو انڈین نژاد امریکن ہے اس کا نام ہے پال کپور۔
पॉल कपूर को नायब वजीर खारजा बराए जनूबी व वस्ती एशिया नामजद किया गया है और इनकी तकर्री के लिए अगरचे अभी सेनेट से तस्दीक की ज़रूरत है, लेकिन वो इस ओहदे पर फायज होने वाले दूसरे भारतीय नज़ाद अमरीकी सफारतकार होंगे। पॉल कपूर पाकिस्तान की सलामती और जोहरी अमूर के माहिर हैं और पाकिस्तान के सख्त नाकद समझे जाते हैं। वो ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में अमरीकी महकमा खारजा की जनूबी एशिया पॉलिसी की टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं और पाकिस्तान का सख्त नाकद होने की वजह से जो पॉल कपूर हैं उनकी जो इंडियन लॉबीज है वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मौजूद है। लिहाजा ये जो इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, ख़ास तौर पर अमेरिकन नई पॉलिसीज़ के हवाले से, उसको किसी भी तौर पर खुशकुन नहीं करार दिया जा सकता। एक जानिब पॉल कपूर ट्रंप इंतज़ामिया का हिस्सा बने हैं, दूसरी जानिब तुलसी गब्रार्ड भी जनाब जो है वो अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के जनाब डायरेक्टर के तौर पर सामने आई हैं। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दौर में अगर ट्रंप इमरान खान की सपोर्ट करेगा और इमरान खान ट्रंप की सपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके नतीजे जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे। और ख़ास तौर पर यह नुक्ता हमें जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को दुरुस्त करने के लिए मरी जा रही है। ना सिर्फ मरी जा रही है बल्कि खुद जो है वो हुकूमती अहम ओहदेदार राना सनाउल्लाह साहब जो है बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा हैं उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहन में किसी न किसी जगह पर कोई ग्रेटर पख्तूनिस्तान का जो है ना वो कीड़ा कुल बुला रहा है। और अगर आप इन तमाम जो तब्दीलियां हैं जो कि अमरीकी इंतज़ामिया में हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अफगानिस्तान के साथ असरो रसूख और उसके साथ रियासत पाकिस्तान और वफाक पाकिस्तान को दी जाने वाली इन धमकियों को कि जनाब अगर गोली अब मारी गई तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, सख्त और खतरनाक तरीन इशारे हैं। और अगर हम हाइपोथेटिकल बात करें कि अगर अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर अफगानिस्तान को ज़रा सी हल्लाशेरी दें तो ये सिचुएशन ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। लिहाजा इस मौके पर ये जो कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से चंद जुमले बोले गए थे ना कि जनाब ये जो खत खुत हैं ये चालें हैं और इन चालों को हम बखूबी समझ रहे हैं, तो ये जो इस इर्द गिर्द हमारे हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चालें हैं और रियासत पाकिस्तान को इन चालों से बखूबी आगाह होना चाहिए। और इस वक्त मौजूदा हालात में ट्रंप इंतज़ामिया से किसी खैर की तवक्को नहीं करनी चाहिए और अमेरिका के साथ उतने ही ताल्लुकात रखने चाहिए जितने ताल्लुकात की ज़रूरत है। अलबत्ता रीजनल सिक्योरिटी के लिए चाइना और रशिया के साथ पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात कार को बढ़ाना चाहिए और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि कल कॉन्फ्रेंस रूम अडयाला जेल वहां पर 2 घंटे की मुलाकात अली अमीन गंडापुर की अरेंज हुई है, तो इस मुलाकात के अंदर अली अमीन गंडापुर और इमरान खान ने जायचा बनाकर या फर्श के ऊपर 12 टहनी तो नहीं खेली होगी। यकीनी तौर पर कुछ ऐसे अमूर वहां पर ज़ेरे बहस आए होंगे जो पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर इमरान खान की सियासत के हवाले से अहमियत रखते हैं। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि जैसे जैसे इमरान खान के लिए जो कबूलियत है वो ख़त्म होती जा रही है, उसी के साथ साथ इमरान खान की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती चली जा रही है और उसी फ्रस्ट्रेशन में इमरान खान साहब एक ऐसी टीम को डेवलप कर रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की सख्त तरीन नाकद समझी जाती है और उसकी बुना पर इमरान खान साहब नई एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट की बुनियाद रखने जा रहे हैं। और इसी हवाले से इमरान खान की तरफ से पहले अली अमीन गंडापुर को माइनस किया गया, जुनेद अकबर साहब को लाया गया और अली अमीन गंडापुर चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं लिहाजा उनके पर उतरे गए। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लीडर्स
जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नरम गोशा रखते हैं, चाहे वो अली मोहम्मद खान हो, चाहे वो शहरयार अफरीदी हो, चाहे वो शंदाना गुलजार हो, या चाहे वो शेर अफजल मरवत हो, उनको आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान जो है वो अपने आप से दूर करके एक आइसोलेशन के अंदर लेके गए। और खैर शेर अफजल मरवत को तो देश निकालना ही मिल गया। अब इस सिचुएशन के अंदर बाकी लीडर्स के साथ साथ अली अमीन गंडापुर के लिए भी अपनी कुर्सी को बचाना मुश्किल है। और इसी हवाले से कल की मुलाकात में वो लम्हा खास तौर पर टर्निंग पॉइंट था जब जनाब अली अमीन गंडापुर की तरफ से शेर अफजल मरवत साहब की हमायत की गई और इमरान खान से कहा गया कि जनाब वो इस फैसले को, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उनको पार्टी से निकाले जाने का, वो नोटिफिकेशन वापस लें और अली अमीन गंडापुर के कहने पर शेर अफजल मरवत को अपनी सफाई का एक मौका दें। अगरचे अली अमीन गंडापुर की तरफ से शेर अफजल की जो सिफारिश थी उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया और जवाबी तौर पर इमरान खान ने अपने अगले प्लान पर अमल दरामद के लिए अली अमीन गंडापुर पर दबाव डाला और उन्होंने तैमूर झगड़ा साहब को सूबाई काबीना में शामिल करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को हदायत की। ये वही तैमूर झगड़ा साहब हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। इन्हीं साहब को जनाब इमरान खान के कहने पर जनाब अली अमीन गंडापुर ने अपनी काबीना में नहीं लिया था और फिर इमरान खान को इस बात पर कायल किया था कि तैमूर झगड़ा की गुंजाइश नहीं बन रही काबीना में। और फिर झगड़ा साहब के खिलाफ अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर मीडिया पे आकर भी बात की थी कि यह कैसा वज़ीर ख़जाना है जो 10 साल तक परफॉर्म नहीं कर सका खैबर पख्तूनख्वा में, तो एक ऐसा बंदा जो माजी में 10 साल परफॉर्म नहीं कर सका उसको अब हम जो है वो काबीना में क्यों लें। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने ये जो तख्ते गंडापुर है इसके अंदर जनाब तैमूर झगड़ा को हिस्सेदार बना दिया है अली अमीन गंडापुर के साथ, और खजाना अमूर से के साथ साथ ये जो सारे के सारे पॉलिसी डिसीजंस हैं वो भी तैमूर झगड़ा साहब के सुपुर्द करने का इशारा दिया गया है अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात में। अब ये सिचुएशन यहां पर आके अब हो जाती है ट्रिकी, क्योंकि अब अगर अली अमीन गंडापुर तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करते हैं तो यह वाज़ेह तौर पर इशारा होगा कि अली अमीन गंडापुर के लिए एग्जिट गेट खुल गया है। और एग्जिट गेट तो अली अमीन गंडापुर के लिए खुला है क्योंकि अगले मरहले में जो ऊंट का सर खैमे में आया है उसने मुकीम को तो बाहर निकालना है। अब अगर अली अमीन गंडापुर भी शेर अफजल मरवत के जैसे मुस्तकबिल का शिकार होंगे तो फिर सवाल यह है कि क्या शेर अफजल मरवत की तरह अली अमीन गंडापुर भी मीडिया पर आकर गुफ्तगू करेंगे या वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपना अलग पॉलिटिकल ग्रुप को डेवलप करेंगे, क्योंकि यहीं से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का कोई तयन होगा। क्योंकि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ये जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और अगर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ टूटती है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर बगावत होती है, जो कि बगावत अब होती हुई नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में यूथ के अंदर शेर अफजल मरवत की खासी एक्सेप्टेंस मौजूद है। इसी तरीके से जो अरकान असम्बली का जो एक ग्रुप है जिसको खुद अली अमीन गंडापुर ने मुंतखब किया था, खुद उनको टिकटें बांटी थी, खुद उनको जितवाया था, उनके हल्फनामे उनसे तहरीर करवाए थे, वो तमाम ग्रुप्स भी अली अमीन गंडापुर के साथ मिलें तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर इमरान खान को टफ टाइम दे सकते हैं। अगर इमरान खान अपने इस फैसले पर कायम रहते हैं कि वो तैमूर झगड़ा को जनाब सूबाई काबीना में शामिल करेंगे तो ये इमरान खान का खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का एक नादर मिसाल होगी। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो आने वाले दिन हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा ही एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहे हैं और देखना ये होगा कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। क्या वाक़ईतन अली अमीन गंडापुर मैदान अमल में निकल कर इमरान खान को चैलेंज करेंगे, और अगर चैलेंज करेंगे तो क्या
جو عوام ہے خیبر پختونخوا کی وہ علی امین گنڈا پور کا ساتھ دے گا؟ اپنے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.